now in the previous video, we have completed the exercise 3.1, okay, of the chapter squares and square roots. Now in this video, we will discuss the shortcut method to find the square of any number, okay. I will tell you three methods. Out of the three methods, you can use any method to find the square of any value, okay. So welcome class 8 chapter 3, that is squares and square roots. Okay, so today's lecture is going to be quite interesting, so pay attention to it. Okay, shortcut method to find square of any number. Okay, by using this method you can find the square of any number. So I will tell you three methods. What are the three methods? Okay, first method is using multiplication, second method is using algebraic identities, and third method is using squares from 1 to 25. Okay, थर्ड मेथड के लिए आपको क्या कंडीशन है, आपको 1 to 25 सारे स्क्वायर्स आना चाहिए. ओके, देन ओनली यू कैन यूज दिस थर्ड मेथड. So for this third method, 1 to 25 squares are required, compulsorily required. Okay, and for this multiplication and algebraic identities method, only you need to put the values and find out the answer. Okay, so we will discuss with the help of example. Like your first example is find the square of 47. Okay, आपको 47 का स्क्वायर अभी फाइंड करना है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं. तो आपको क्या करना है, 47 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है. अभी आपको पता है 47 कैसे बना है. 47 का स्क्वायर यानी 47 मल्टीप्लाइड बाय 47 होता है. ओके, और 47 कैसे बना है, it is made from 50 minus 3. Okay, and this 47 also again 50 minus 3. Okay, तो 50 minus 3 और 50 minus 3 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ये दो ब्रैकेट का, तो आपको क्या मिलेगा, 47 का स्क्वायर मिलेगा. तो हम लोग करते हैं यहाँ पे 50 minus 3 in first bracket and 50 minus 3 in other bracket. तो हम ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2500 होगा. ओके, नाउ दिस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म क्या हो गया, -150 होगा. ओके, सिमिलरली सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म. So what is second term into first term? It is -150 again, and second term into second term is what, +9. So by calculating all these values you will get the square of 47. So see here, now this is -150 and -150 will make -300. So 2500 minus 300 is what, 2200. Okay, 2200, and this +9, so what it will become, 2209 is the square of 47. 2209 is the square of 47. So this is how we are going to use the multiplication method. Okay, ये हम लोगों ने multiplication method से solve किया था. अभी next method देखते हैं अभी हम लोग यूजिंग algebraic identity. ओके, algebraic identity यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो 47 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है. तो 47 क्या है, अगेन इट इज व्हाट, 50 minus 3. ओके, 50 minus 3 का होल स्क्वायर करोगे. तो आपके पास algebraic identity क्या है, a minus b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है आपके पास. तो ये आइडेंटिटी से क्या होगा, एक्सपांशन इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा सकते हो. यहाँ पे इसको सेकेंड ऑप्शन भी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 40 plus 7 का होल स्क्वायर यानी 47 का स्क्वायर होगा. तो उसके लिए हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a plus b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b
b square. Okay, it is up to you now how you arrange the numbers. Okay, if you arrange it like this, so you will use this identity, and if you arrange like this, so you will use this identity. Okay, so by first arrangement I am going to solve now. So a square, now see here, this 50 is your a and this 3 is your b. So by expansion of this a minus b whole square, what is the expansion? A square minus 2ab plus b square. So what I will do? I will do 50 square minus 2 into a is what? 50 and b is what? 3 plus b square you have to do. B square is what? 3. So 3 square you will do. So now what will be the answer here in this case? 50 square is what? 2500 minus this is what? 3 2s are 6 and 6 5s are 30. So minus 300 and plus 9. So again you will get 2209 only in this case. Okay. Now by solving this method or by arrangement of this 40 plus 7, we will use this algebraic identity. So here this 40 will become A and 7 will become B. Okay, so by using this algebraic identity, what it will become then? 47 square, which is equal to 40 plus 7 whole square, which is equal to what? Now this is your A and this is your B. So A square you will do. So 40 square plus 2 multiplied by 40 multiplied by 7 and plus 7 square. Okay. So again it will come what? 1600 plus. Now see here, 7 2s are 14. 14 4s are is what? 56. So 568 will come plus 49. So in this case also you will get 2209 only. Okay. So use any of the algebraic identity as per your convenience. So this is how we use the algebraic identity and find the square of any number. Now the third step is what? Third step is using the square from 1 to 25. ये तीसरा मेथड है हम लोगों का. 1 to 25 स्क्वायर यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे. इसमें क्या है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. लाइक ये 47 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 47 के पास में होता है 50, तो 50 को हम लोग बेस लेते हैं. ओके, 50 को हम लोग बेस लेते हैं. तो 47 और 50 में गैप कितना है? 3 का. ओके, गैप कितना है? 3 का. तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है. ओके, 3 का स्क्वायर होता है 9. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 09 लिखेंगे. ओके, 09 लिखेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी हमने 3 का स्क्वायर लिया है, तो 47 माइनस 3 करेंगे हम लोग. 47 माइनस 3 कितना होता है? 47 माइनस 3 इज व्हाट? 44. अब ये 44 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट इट विल गेट? 22. सो 2209 इज द स्क्वायर ऑफ 47. इस तरीके से हम 1 to 25 तक के स्क्वायर यूज करके भी हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. सी, आपको एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, अगर आपको स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है 26 से लेके तो 75 तक, तो आप ये केस में बेस लोगे 50 को. ओके, और अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है 76 से लेके 125 तक, तो ये केस में आप बेस लोगे 100 को. जब आप बेस 50 लेते हो तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे मैंने 44 डिवाइडेड बाय 2 किया है. जब आप बेस 100 लेते हो, डिवीजन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप जो ये वैल्यू मिला है 44, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. आगे एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा. Next example is what? 53. Okay, so first we will solve it by using multiplication. So what we have to find? We have to find 53 square. Okay, 53 square क्या होता है? 53 multiplied by 53 होता है. Okay, तो 53 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50 plus 3, और ये वाले 53 को अगेन 50 plus 3. तो ये दो ब्रैकेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. सो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 2500 प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज व्हाट? 150 प्लस
second term into first term, फिर second term into second term. So second term into first term is what? Again 150 and plus 9. So what it will become now? आप सबका बस एडिशन करना है आपको. 2500 plus 300 is for 2800. 2809. Okay. So 53 का स्क्वायर क्या आएगा? 2809 आएगा. By using multiplication method we have done this. And in the second case what we will do, we will use the algebraic identity. तो आपको क्या फाइंड करना है? 53 का स्क्वायर फाइंड करना है. तो 53 क्या है? इट इज नथिंग बट 50 प्लस 3 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? a प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये वाला आइडेंटिटी जब आप लगाओगे तो a होगा आपका 50 और 3 होगा आपका b. ओके, तो ये आइडेंटिटी से आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर. सो व्हाट इट विल बिकम? 2500 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 3 2 6, 6 5 30. सो ये 300 आएगा प्लस 9. सो अगेन इट विल कम 2809 इन दिस केस. 2809 इज द स्क्वायर ऑफ 53. ओके, सो अभी हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं. थर्ड मेथड में हमको क्या चाहिए? 1 to 25 स्क्वायर आना चाहिए. अभी आपको क्या निकालना है? 53 का स्क्वायर निकालना है. ओके, तो 53 का स्क्वायर निकालना है. तो यहाँ पे ये मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे जब आपको 26 से लेके 75 तक स्क्वायर फाइंड करना है तो आप बेस लोगे 50 को. ओके, तो आप बेस लोगे 50 को. तो यहाँ पे बेस क्या होगा? 50 होगा. ओके, तो अभी यहाँ पे ये 50 से 3 ज्यादा है. ओके, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर इज 9. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा? 09. ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? 3 का स्क्वायर लिया था, 3 का स्क्वायर लिया था, तो मैं ये 53 में 3 ऐड कर देता हूँ, ये वाला 3. तो 53 में 3 ऐड करने के बाद क्या होगा? 56. फिर उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट 28. सो 2809 इज द स्क्वायर ऑफ 53. ओके, ओके, अगर वैल्यू 75 से ज्यादा हो, लाइक 76 to 125 हो, तो वो केस में आप बेस क्या लेते हो? 100 लेते हो. आगे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग उसका भी, डोंट वरी अबाउट इट. तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्टली. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 69 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है. ओके, 69 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी विल डू इट बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो 69 का स्क्वायर क्या होता है? 69 मल्टीप्लाइड बाय 69 होता है. 69 क्या है आपका? 70 माइनस 1 है. सिमिलरली ये वाला 69 क्या होगा? 70 माइनस 1. तो ये दो ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 4900 minus 70. Now second term into first term and second term into second term. So again minus 70 and plus 1 it will come at the last. So now just do the addition subtraction, you will get the square of 69. See यहाँ पे minus 70 और minus 70 140 हो गया. ओके, तो और प्लस 1 करने के बाद कितना हो जाएगा? माइनस 139. सो 4900 में से आपको 139 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. So what it will come? Here it will come 8. Here it will come 9. So 10 minus 9 is 1. 9 minus 3 is 6. And this 8 and this 4. Okay, no. 8 minus 1 you will do. So here it will come 7. So 4761. 4761 is the square of 69. ये था मल्टीप्लिकेशन मेथड से. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो आपको क्या फाइंड करना है? 69 का स्क्वायर फाइंड करना है. तो 69 का स्क्वायर क्या होता है? ओके, 69 मल्टीप्लाइड बाय 69 होता है. ओके, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 69 के स्क्वायर को 70 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? a माइनस बी होल स्क्वायर का. व्हाट इज द आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके,
तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 70 और b क्या हो जाएगा 1. So by using this identity what it will become 70 square minus 2 into 70 into 1 plus 1 square. Okay, so what is 70 square 4900 minus 140 and this plus 1. So again you will get the same answer, that is 4761 in this case. Okay, तो ये था एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके. अभी हम लोग डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है 69 का स्क्वायर फाइंड करना है. ओके, 69 का स्क्वायर फाइंड करना है. तो मैंने पहले ही बताया था आप लोग 26 से लेके 75 तक जब भी स्क्वायर फाइंड करते हो तो आप बेस लेते हो 50. ओके, और 76 से लेके 125 जब आप स्क्वायर फाइंड करते हो तो आप बेस लेते हो 100. तो यहाँ पे ये जो 69 है ये फर्स्ट वाले केस में लाई करता है, तो हम लोग बेस लेंगे 50 को. ओके, तो अभी 50 से कितना ज्यादा है 69, 19 ज्यादा है. ओके, और मैंने थर्ड वाले मेथड के लिए पहले ही बताया था कि आपको 1 to 25 स्क्वायर आना चाहिए, तो 19 ज्यादा है. ओके, 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर क्या है 19 का स्क्वायर है 361. तो ये 361 में के आप दो डिजिट्स पहले यहाँ पे लिख लोगे. ओके, 61. ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे 69 में आप 19 ऐड कर लोगे. 69 में आप 19 ऐड कर लोगे, तो 69 प्लस 19 कितना होता है 18. ये होता है 7 8 88 होता है. 88 होता है. तो हम लोग क्या करेंगे 88 का हाफ करेंगे. 88 का हाफ कितना होता है 88 डिवाइडेड बाय 2 होता है 44. और ये जो बचा 3 है हम इसमें ऐड करेंगे तो यू विल गेट 47, और ये वाला 47 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. सो व्हाट विल बी द आंसर 4761. ओके, इट इज नॉट that you should use this method only, you can use the above two methods also. See, ये थर्ड मेथड का लिमिटेशन है, आप इससे सिर्फ 1 to 125 तक के ही स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट 77 स्क्वायर. ओके, so 77 square we will do first. So 77 square फाइंड करने के लिए 77 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं 77 मल्टीप्लाइड बाय 77 लिखेंगे. तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 80 माइनस 3 होता है 77. सिमिलरली 80 माइनस 3 होता है 77. तो आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सिमिलरली सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म. So what it will become 6400 minus 240 minus 240 and plus 9. ओके, तो अभी माइनस 240 और माइनस 240 कितना होता है माइनस 480 होता है, और प्लस 9 करने के बाद 480 में से आपको 9 सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस 471 आएगा. तो 6400 में आप क्या सब्सट्रैक्ट करोगे 471 सब्सट्रैक्ट करोगे. ओके, so what it will come now, so here it will come 3, this will become 9, this will become 10. So 9 2, now 63 minus 4 is what 59. So 5929 is the square of 77. 5929 is the square of 77. ओके, ये था मल्टीप्लिकेशन मेथड से. अभी हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करते हैं. तो आपको फाइंड करना है 77 का स्क्वायर. 77 क्या होता है 80 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके, तो आप यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे a हो जाएगा 80 और b हो जाएगा 3. So using this identity what it would become 80 square minus 2 into 80 into 3 plus 3 square. Okay, so what it will become again 6400 minus 480 and plus 9. So again you will get the same answer, that is 5929 in this case after solving this all the terms. Okay, now moving forward to the third method, that is shortcut method.
77 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो अभी मैंने पहले ही बताया था 26 से अगर 75 के बीच में अगर वैल्यू हो तो आप बेस लेते हो 50 को, और ये वैल्यू 76 टू 125 के बीच में है तो आप बेस लोगे 100 को। तो ये केस में हम लोग बेस लेंगे 100 को। ओके, तो 100 से कितना कम है? 77, 23 कम है। ओके, 23 कम है। 23 का स्क्वायर करेंगे हम। 23 का स्क्वायर याद होना चाहिए हमको, क्योंकि हमको ये मेथड के लिए 1 to 25 स्क्वायर याद होना चाहिए। 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 डिजिट्स दैट इज 29 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 23 करने के बाद हमको 77 मिला था, तो हम लोग क्या करेंगे, 77 में से हम लोग 23 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना मिलता है हमको? 4 और यहाँ पे 5, 54 मिलता है। 54 मिलता है। ओके, सो 54 में जब हम ये 5 ऐड करेंगे, ये 5 बचा है आपका, तो ये 54 में आप ये 5 ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 5929। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 91। ओके, तो 91 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो 91 का स्क्वायर क्या होता है, 91 मल्टीप्लाइड बाय 91, और 91 को हम क्या लिखते हैं, 90 प्लस 1। सिमिलरली ये 91 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 प्लस 1। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सो व्हाट इट विल बिकम, 8100 plus 90 plus 90 and plus 1. Okay, so ultimately what it will become, 8100 में आपको 181 ऐड करना है, तो 1 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ये 2, तो 8281, 8281 is the square of 91। ये था मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो 91 का स्क्वायर फाइंड करना है। 91 क्या है, 90 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इट विल बिकम देन, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। तो a स्क्वायर करना है आपको, यानी 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सो 90 स्क्वायर इज व्हाट, 8100 प्लस ये 180 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 8281 ओनली। तो ये था यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अभी हम थर्ड मेथड से इसी को सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड करना है 91 का स्क्वायर। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था 26 से लेके 75 तक आप बेस लेते हो 50 को, और 76 से लेके 125 तक आप बेस लेते हो 100। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये केस में लाई करती है, तो हम लोग बेस लेंगे 100 को। तो अभी 100 से कितना कम है, 9 कम है। ओके, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कर लो। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो हम लोग यहाँ पे ये 81 लिख लेंगे। ओके, दिस 2 डिजिट्स वी विल राइट हियर 81। अभी इधर के 2 डिजिट हमको फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या किया है, 100 में से 9 कम किया तब हमको 91 मिला है, तो अब हम 91 में से 9 कम कर देते हैं। ओके, तो 91 माइनस 9 करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। ओके, सो 8281 इज द स्क्वायर ऑफ 91। नेक्स्ट 112 का स्क्वायर अभी आपको फाइंड करना है। ओके, तो 112 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 करते हैं। ओके, तो 112 कैसे बना है, 110 प्लस 2 एंड अगेन 110 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करोगे फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सिमिलरली सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म। व्हाट इट विल बिकम, first term into first term 121 and this double zero it will come here. Now this first term into second term is what, 220 plus 220 again and plus
4. So what you will do, you will add all these terms. So 444 you will add. Okay, so 4 4 5 1 2. Okay, 12544. 12544 is the square of 112. This was by using the multiplication. Now we will do with algebraic identity. Okay, so now for algebraic identity 112 का स्क्वायर फाइंड करना है. 112 क्या है आपका, 100 प्लस 12 लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे. 100 प्लस 12, आप चाहे तो 110 प्लस 2 भी ले सकते हो, बट हम लोग 100 प्लस 12 लेके सॉल्व करेंगे. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर का आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b. तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या होगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 12 प्लस 12 स्क्वायर. ओके, सो फर्दर सॉल्विंग दिस व्हाट इट विल बिकम, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 प्लस ये क्या होगा 1200 इंटू 2 इज व्हाट 2400 प्लस 144. ओके, तो इन सब का जब आप एडिशन करोगे अगेन यू विल गेट व्हाट 12544. ओके, यू कैन चेक इट. ओके, तो 100 प्लस 12 ले लो आप या फिर 110 प्लस 2 ले लो और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा लो, यू विल गेट द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 112. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं. 112 का स्क्वायर आप लोगों को फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था 26 से लेके तो 75 तक आप लोग बेस लेते हो 50 को, और 76 से लेके 125 को आप बेस लेते हो 100. ओके, तो ये केस में हम लोग बेस 100 को लेंगे क्योंकि 112 लाइज बिटवीन 76 एंड 125. तो यहाँ पे बेस 100 को लेते हैं. तो 100 में जब हम 12 मिलाते हैं तो हमको 112 मिलता है. एंड व्हाट इज 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144. तो उसका 44 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 में जब 12 मिलाया था तो हमको 112 मिला था. तो अब हम लोग क्या करेंगे, 112 में फिर से 12 मिला देते हैं. तो व्हाट इट विल बिकम 124, और ये बचा 1 इसमें जोड़ देते हैं 124 में. तो व्हाट इट विल बिकम 125. 12544 इज द स्क्वायर ऑफ 112. तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर वैल्यू किसी भी नंबर का. ओके, 3 मेथड्स मैंने आपको बताया है, आपको जो सूटेबल है आप वो यूज कर सकते हो. ओके, so if you have any doubt you can comment me your doubts in the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.